Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So taking up the important topic. So firstly, you can see that this is one of the advertisements that we get in the newspaper, which gives details about the financial results. So this is for the Aditya Birla Finance Limited. But for us, what is important is if you can scroll down, Prerna, the point number 12 is talking about the debt equity ratio. So what is the adequate number that should be there, or what do we get to know through this ratio of debt equity ratio? So it involves assessing the financial structure. It is related to finances. Debt and equity are two elements of it. So it overall gives us a picture about a company's financial risk and stability, because somewhere it is talking about its borrowing, its liabilities, which is the debt. And simply, how do we arrive at this ratio is by dividing the total debt with the shareholder equity. So when the debt to equity ratio is at higher level, so it indicates that there is a significant portion of the company's financing which is coming from debt, which means from borrowing. So if this ratio is high, so this is one indication that we get to know. And if the ratio is high, so it means that there is high financial risk. So if your risk appetite is high and you are ready to take higher risk, because we also say that with higher risk comes higher returns, then you can invest in such types of equity stocks in the companies on the basis of your assessment, these numbers. And if the debt to equity ratio is high, which means the debt borrowing is high, so this would also mean that the burden of the interest payments or the obligations on the company would also be higher, because they'll have to repay that debt, and with that there are interest payments which are associated with it. And if the ratio is low, so it would suggest that the company relies less on debt for its financial needs, financing, and it would indicate more of financial stability. And there is then reduced financial risk when the debt to equity ratio is less. And with this, when this ratio is low, the one negative is that there are lower returns. But again, you are more safer, there is less risk in this case. So there is no one fixed, we can say one optimal debt to equity ratio. It depends upon which nature of industry are we assessing, which is the sector. So it is going to vary accordingly. And then we can arrive at in one average, which would be more adequate. So this is about the debt to equity ratio. Next topic. So when we're talking about the incense stick market size in India, so it is close to rupees 10,000 crores, which is huge. And in that particular subsector is there, which is specifically about the mosquito repellent incense sticks which are being manufactured. So overall, we are seeing that there is 80% domination or share of the unorganized sector. And here we are seeing different market players. They are making an entry and they want to have more of the market share from the unorganized sector, because again, incense sticks, specifically the mosquito repellent ones, they are also important from the perspective of the the safety, the health, because they are using certain types of chemicals and insecticides are there. So what amount is being used becomes important from the perspective of the human health. And But apart but from in this context, but RN, in this context, if we even say that unorganized sector is having such a big share, and we have been using incense sticks since ages in India, so we have hardly there are any instances where a big tragedy or casualty had taken place because of use of something or because of malpractices by the unorganized sector. So what I think we should be looking into is that how self-help groups or even the farmer producing organizations or even tribal groups, their role and their sustenance livelihood is continued, how they can be helped into converting into micro enterprises and big players. They would always love to increase their share and domination. So that must not be the case if we ideally want to go for, say, Viksit Bharat.
हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये पेस्टिसाइड वाला पॉइंट जो स्पेसिफिकली जो मॉस्किटो रेपेलेंट इंडस्ट्री, उसमें वी आर सीइंग कि कुछ मिसयूज किया जा रहा है बिकॉज द साइज इज ग्रोइंग। तो देर इज दिस सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑल्सो, तो दे आर ऑल्सो टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ दिस थिंग। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि cheaper imports from China and Vietnam is also there, so we are imposing certain restrictions on them. And then No, there is one we can only put restrictions which are logical and which are, desirable. We have to हाँ follow जी the सर, like WTO rules. indirectly, indirectly we can increase the customs duty so that again they become less competitive in the Indian markets. So there are different ways and methods for that. And RNF यहाँ पे एक term mention की गई है which is used in the mosquito repellent incense sticks. So RNF, it stands for it means renofluthrin. So this is one type of, we can say, molecule, and this is also one type of insecticide which is used in these. तो ये वर्ड जो है, दिस वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट अगर प्रीलिम्स में ऑप्शंस आते हैं या कोई पॉइंट आता है तो वी कैन जस्ट टेक ए नोट ऑफ इट. हाँ जी सर, renofluthrin. Okay, next topic. सो यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो की बात हो रही है. तो वी नो about, we talked about IPOs, initial public offerings, primary and the secondary market, which is there in capital market. So solvency ratios, again, what do we get to know through this when we are assessing the performance of a company on the basis of how its solvency ratio has been changing? So this is an important metric which is used so as to assess the business's ability to fulfill their long-term debt requirements. हाउ सॉल्वेंट इज अ कंपनी, अगर हम इसको सिंपली इस टर्म से भी समझ सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज करते हैं. सो सॉल्वेंट और सॉल्वेंसी मीन्स कि how much capital you are having, how much adequate amount of capital you are maintaining in order to pay your debt obligations. So this in a way again is यानी also वी a शुड metric ऑलवेज of ट्राई, whether credit. वी शुड या वी शुड ऑल ट्राई टू रिमेन ए सॉल्वेंट. बेसिकली हाँ सॉल्वेंसी जी. रेशियो होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बिकम इनसॉल्वेंट. हाँ जी सर, एंड इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से हमेशा कम होना चाहिए. बिल्कुल. नेक्स्ट. So you can zoom a little here. ये ऑल्दो हमने इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फॉलिंग नेट फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर इन इंडिया. सो दैट इन दिस ऑल्सो वी डिस्कस क्या पर्टिकुलर रीजंस थे कि वो कम हो रहा है, और उसमें भी जो वो कम हो रहा है फैक्टर भी, उसकी वजह से भी क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो इसमें वी आर सीइंग की 71 रीजन जो अगेन मेंशन है, 73% जंप इन द फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द हाउस होल्ड्स. अगेन आफ्टर कोविड-19 ये ट्रेंड और ज्यादा वी कैन से शार्प हुआ है, या क्लियरली हमें और समझ में आया, दिखाई दिया है, बिकॉज पीपल दे वांट टू मेंटेन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर रहे हैं. और एक और हाउस होल्ड बिहेवियर जो समझ में आया है कि विद द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन पीपल आर रेडी टू पे दैट मच अमाउंट through borrowing. So because of that, their financial liabilities have jumped by 73%. So this ओह is माय one of गॉड. the one why the net financial savings in India has been declining. So So, how this trend augurs for the future? so from the future perspective, we assessed this in the context with the trend in the developed countries कि वहां पे भी we saw कि people जो household they have been borrowing and they've been spending. So this is positively related with the investment cycle, because if people are borrowing and they're spending more, the aggregate demand is increasing. So that would strengthen the backward linkages. For example, it will strengthen the manufacturing activity also. So in a way, this is positive, but again, up to an extent, जब हम बात कर रहे हैं कि they are borrowing, तो उसकी भी एक लिमिट है. इफ इट गोज बियॉन्ड दैट, एंड जो इन्वेस्टमेंट साइकिल की हम बात करें कि वो और स्ट्रेंथन होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट साइकिल की फाइनेंसिंग जो है क्या वो सेविंग्स से हो रही है, बिकॉज सेविंग्स भी साथ में डिक्लाइन हो रही है. एंड इफ इट इज बीइंग फंडेड थ्रू सेविंग्स, तो दैट इज पॉजिटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. बट इफ इन्वेस्टमेंट इज बीइंग फंडेड बाय द एक्सटर्नल बोरोइंग्स, क्योंकि दो ही सोर्सेज है, या तो सेविंग्स के थ्रू फाइनेंस होगी इन्वेस्टमेंट, या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग्स. तो अगर एक्सटर्नल बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई, तो दैट वुड लीड टू अगेन जो हमारी एक्सटर्नल डेट है इंडिया की, और एक जो हमारा पॉजिटिव फैक्टर भी रहा है कि हमारी एक्सटर्नल डेट इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी वल्नरेबिलिटीज और रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं सर. हम्म. लेकिन इंडिया में इतना बड़ा रूरल सेटअप है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर्मल जॉब्स इतनी थोड़ी हैं.
फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी और लेबर रेशियो भी थोड़ा है. तो कीपिंग ऑल दीज माइंड्स, व्हेन यू से दैट डेवलप्ड कंट्रीज के जैसा है, तो all other parameters should also be matching, which is not matching, unfortunately, and the large population over here. So the only way ahead is to grow the economy, create jobs, skills, and that's how the debt can only be serviced. Otherwise, हाँ it जी. will become unsustainable, and the institutional system will be under stress. और जो फ्यूचर जो डेवलप कंट्रीज के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स होते हैं वो फिर हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हो पाएंगे. हाँ जी सर, और इसमें हमने बोरोइंग्स में भी तीन सेक्टर्स की बात करी थी, तीन मेजर एरियाज जहाँ पे बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है. दैट इज होम लोन्स एंड ऑटो लोन्स एंड थर्डली अनसिक्योर्ड लोन्स. तो ये तीन में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है. Auto loans is showcases again growth in manufacturing setup, and home loan also reflects the growing aspirations and also the availability, and unsecured loans is also showcasing the discretion. So basically, without any growth, positive growth, there will be no long term sustainable development. That is what we should be keeping in mind. तो चाहे climate change के goals हैं और चाहे फिर वो SDG है, सब कुछ यहाँ पे intricately linked है. We have to find solutions. We have to always provide solutions. गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे कम हो, क्योंकि 70 करोड़ को तो सब्सिडी मिल रही है, एंड देन फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड सो ऑन. सो वी हैव टू कीप इन माइंड लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हेन वी स्पीक अबाउट दीस टर्म्स. जी सर, नेक्स्ट टॉपिक. सो उस पे जूम कर दो. गवर्नमेंट एक्शन ऑन इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स. तो स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट्स की यहाँ बात हो रही है. तो वन वी आर सीइंग कि इसको कैपिटलिज्म वर्सेस कंज्यूमर इंटरेस्ट लेके भी समझ सकते हैं. तो वन इज द वायलेशन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गाइडलाइंस दैट दे हैड इशूड. एंड वन तो वी आर सेइंग कि हमने 28% जीएसटी इम्पोज कर दिया ऑन दी टोटल फाइनेंशियल अमाउंट जो भी एक पर्टिकुलर प्लेयर यूज करेगा. एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, या हम ओवरऑल भी यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ मेंशन भी है कि जो बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867. सो ये दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑल्सो. लाइक इन केस ऑफ गोवा ऐसा नहीं है. तो एक यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड नहीं है ऑन दिस. एंड डेफिनेटली इसमें भी आर सीइंग कि क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं या हो भी रहे हैं, जो सडनली वी कैन से कि आउटबर्स्ट होंगे. तो यूथ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस बिकॉज ऑफ अगेन कि माइंड में रहता है कि आपको क्विक मनी अर्न करना है, क्विक प्रॉफिट, यू हैव टू गेट रिच. So one is this thing, to addiction होगी, health problems होंगी because of increased screen time, and then your mental health would get affected because of again losses. There would be social isolation, and again आपकी privacy और security concerns, cyber वो सब security, तो बात की बातें all हैं. that would be there. हमारे यहाँ पर जो रोल मॉडल हैं वो लंबोर्गिनी, पोर्शे और बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और गाने और फिर वायलेशन. तो जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटिंग कोई इसलिए नहीं करना चाहता कि बच्चे को स्कूल भेजना है या बच्चे को कुछ बड़ा बनाना है. बेटिंग इज ऑलवेज, ये जो गैम्बलिंग बेटिंग, जितने सारे पोकरबाजी और ड्रीम 11, देयर आर सो मेनी चांस. मतलब दिस हेजी एरिया हैज कम अप बिकॉज ऑफ द डिजिटल एंड महादेव ऐप, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, विच हैड बीन अ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग स्कैंडल एंड स्कैम. तो जब आप एक्शन की बात करते हैं तो जो जस्ट टेल मी, दो कंक्रीट एक्शन बताइए, 3 एक्शन बस, दैट्स ऑल. So one, two, in advertisements we are seeing कि these are being endorsed by again big, even like specifically cricket players या influential personalities. So वो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हो या व्हाट इज. तो एक वो एस्पेक्ट हो सकता है. एंड देन दीज एप्स शुड बी रेगुलेटेड सर. अगर हम रूट कॉज को डील करने की बात करें तो या तो कोई लाइक मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट इम्पोज होनी चाहिए कि आप इतना तक ही यूज कर सकते हो, सो दैट अगेन वो एक एडिक्शन ना बने और देर आर नो लाइक ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस ना हो. These can be two areas पहली according बात to सर, यहाँ पर लिखा हुआ है इलीगल बेटिंग गैम्बलिंग ऐप लिखा हुआ है सर. पहली बात यहाँ पर, तो इलीगल बेटिंग गैम्बलिंग ऐप को रेगुलेट करने से लीगलाइज कर सकते हैं इसको मोस्टली, क्योंकि जो भी लोग खेलते हैं दे आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे हैव अ
चॉइस कि आप खेलना है कि नहीं खेलना है, दे आर एडल्ट, तो उनका जो चॉइस ऑफ सिटीजन वो दिखाता है। तो यहाँ पर इलीगल बात हो रहा है, तो लीगली को आप दो तीन तरीके से इसको कर्व कर सकते हैं। पहला कि रेगुलर रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो सीसीपीए के रूल आते हैं विथ रिगार्डिंग की जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो दिखाता नहीं है, तो फेक एडवर्टाइजमेंट उस पर रोक कर सकते हैं। एंड थर्ड वुड बी जो लिमिटिंग, जो मानसी ने कहा, नहीं, हाँ, बैन सरोगेट एड्स। इलीगल एप्स सरोगेट तो ऐप। बेटिंग और गैम्बलिंग इंडिया में इलीगल ही है, तो इसलिए यहाँ पे इलीगल टर्म यूज किया गया। आप उनको लीगलाइज कैसे कर दोगे? फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को Betting is illegal in India basically. हाँ But जी सर। I'm not Betting sure, can but be we will. regulated, gambling is can be regulated by the state, Yes, Kerala हाँ है, गोवा है, वेरी। सिक्किम है। क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ बैन करके सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई भी चीज़ में भी, हाँ। वर्ल्ड में भी। तो रेगुलेशन इज ओनली स्टेप अहेड, इन माय ओपिनियन। चलिए मूव हेड नेक्स्ट, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिव्यू टॉक से बात हो रही है, तो आसियान के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। It came into existence 1967 में, and Bangkok Declaration was the founding declaration. So initially there were 5 countries which were the founding countries, which includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. And total currently there are 10 countries which are a तो part उसमें of it. चाइना है? नहीं सर, चाइना नहीं है आसियान हाँ, में, ये और आपको इंडिया भी बताने नहीं है। हाँ, हाँ, ये आपको बताने वाली बात है। चलिए आगे। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो वेराइटीज जस्ट मेंशन्ड है, और वी कैन लुक एट कि इंडिया में जो मैंगो प्रोडक्शन है, वी आर सीइंग कि अगेन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ द रेनफॉल। तो द यील्ड हैज बीन इम्पैक्टेड, एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, तो ये एक फैक्ट है। एंड डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो मेजरली वी सी इट इन वेस्ट बंगाल, वी सी इट इन महाराष्ट्र, जो So प्रोडक्शन rather than this, we like for prelims examination also, you must know that there are more than 100 varieties of mangoes, and उसमें लंगड़ा और अल्फांसो से लेकर और सफेदा बहुत सारे हैं। तो आपको उनके किस्म का नाम पता है, तो दैट इज गुड। Secondly, when we are saying that weather shocks, so that means the role of again IMD comes into picture. So यहाँ पे we were discussing about the Aushik ने point raise किया था। Aushik, you can mention your point again. Approximately 10 varieties of mangoes have been given GI tag in India. It is not. Okay, next topic. तो यहाँ कुछ keywords हैं like wishing. Wishing is a combination of 2 words, voice plus phishing. तो यहाँ पे आपकी ऑडियो का मिसयूज करके एक टाइप ऑफ साइबर अटैक इज कंडक्टेड, इतना पता होना चाहिए। देन लास्ट में एवलांक इफेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट इट इज रिलेटेड टू क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोग्राफी। एवलांक इफेक्ट, इसका मतलब कि इफ देर इज अ स्मॉल चेंज विच इज डन इन दी कोडिंग, और जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोल रहे हैं, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज है जो ब्लॉकचेन में, अगर कुछ छोटा चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इट इज एवलांक इफेक्ट। सो दिस इज सिंपली द मीनिंग। यहाँ टैक्सेशन रिगार्डिंग रीड्स, इनवाइट्स एंड आरएसयूज की बात हो रही है। तो फर्स्टली सिंपल वर्ड्स में जो इनकम है, जो रिटर्न्स हैं, दे आर टैक्सेबल, रीड्स और इनवाइट्स की। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फुल फॉर्म्स। सो इसको हम कंसिडर करते हैं, जो कीवर्ड है पास थ्रू इनकम इसको बोला जाता है। एंड रीड्स एंड इनवाइट्स, उनको हम बिजनेस ट्रस्ट कैटेगराइज करते हैं। तो the income or the returns or the profits that you make is considered as pass through income, and then that is taxed. So बस यहाँ पे हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसका निटिग्रिटीज कौन सा लाइक फॉर्म है एंड ऑल ऑफ दैट ना।
स्पेसिफिक डिटेल्स हो जाएगा। This article mainly talks about teacher as learner. तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात हो रही है, विच इज अ न्यू प्रोग्राम, जिसमें इट विल बी अ डुअल मेजर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिसमें कि बीए बीएड साथ में हो सकती है, बीएससी बीएड साथ में हो सकती है, एंड बीकॉम बीएड साथ में हो सकती है, विच इज बैचलर्स इन एजुकेशन फॉर बीएड। तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी, उन्होंने लॉन्च करा है ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें दे कैन प्रिपेयर फॉर द टीचिंग एस्पेक्ट एज वेल, एंड ऑल्सो जो नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा द अदर रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसिप्लिन, उसमें भी दे कैन परस्यू द ग्रेजुएशन। मेजर चैलेंजेस की इसमें क्या बात हो रही है कि द रूल्स दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट एंड स्पेसिफिक, तो इससे जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्लोजर होएगा, एंड ऑफ मेनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। इसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चैलेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। फिर फी स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा हाई है, एंड ऑल्सो इक्विटी और इंक्लूजन को भी इसमें प्रमोट करना है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर तीसरा चैलेंज एक ये भी आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी उसमें 90 वर्किंग डेज होने चाहिए फॉर ए सेमेस्टर, लेकिन इसमें इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में there will be 125 days. तो इनका क्लैश हो रहा है because both the degrees they are complementary. तो इसके लिए specific rules are needed here. Further अगर benefits की बात करें तो इसमें placements, field placements, internships और जो main knowledge है वो side by side जाएगा with the teaching aspect, with the teaching pedagogy etc. that the people will be learning. And also another problem is the calculation and working of academic bank of credits. तो इसमें क्लैरिटी needed है because कई बार ये आर्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, कई बार it is based on the work itself or the projects that are being submitted, कि कितने learning hours है, कितने projects हैं, तो that also needs clarity on this. And also a new education policy में this new thing that is important is फाउंडेशन, 4 स्टेजेस होंगे अब से, दैट विल बी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। तो 9 to 12 विल बी सेकेंडरी, फिर उससे पहले 3 years फ्रॉम 6 to 8 इट विल बी मिडिल, एंड फाउंडेशनल विल बी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर के 2nd class तक, एंड देन लेटर 2nd to 5th इट विल बी द प्रिपरेटरी स्टेज। तो इस प्रोसेस में इट विल बी डिवाइडेड। The next article talks about the well-intentioned study and the demographic myth. तो यहाँ पे इस demographic myth की बात हो रही है कि if the population of a particular community it is rising, या फिर जो fertility rates हैं वो ज़्यादा है, तो we feel, especially in case of Muslims in India, so we feel that they are not facing any discrimination या फिर persecution, और मतलब काफी ग्रोथ हो रही है, बट इन फैक्ट इट शोज के ये दिखाता है कि जो लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा कम है अमंग दिस कम्युनिटीज। अर्ली मैरिजेस होती हैं, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस है, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस द फर्टिलिटी रेट इट इज हायर इन द डेमोग्राफी। तो स्पेसिफिकली इट इज रिलेटिंग टू मुस्लिम्स। तो जो मेन टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होता है, रिप्लेसमेंट रेट होता है, जिसमें कि 2 इज लाइक अगर पेरेंट्स की डेथ होती है, लाइक जैसे फर्दर इन ओल्ड एज, तो उसमें उनको रिप्लेस करने के लिए देयर शुड बी 2 kids, इसलिए 2.1 है, एंड 1 स्पेसिफिकली कैन बी फॉर द अर्ली डेथ्स जो टेक प्लेस करती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ये मेनली रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो एक बेनिफिट तो या फिर एक जो पर्सपेक्टिव है इसका वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन नहीं होता, बट देयर आर सेवरल चैलेंजेस एज वेल। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द हिंदूज, जो कि अभी 79% है पॉपुलेशन में, एंड मुस्लिम्स दे आर एट 14%, फर्दर शो करता है कि आफ्टर अ फ्यू इयर्स जो ये हिंदूज का है दैट विल डिक्लाइन टू नियरली 74, एंड मुस्लिम्स का जो है दैट विल राइज to 18% or something. फिर यहाँ पे this argument was also posed by a minister that
India is the second largest Muslim country after Indonesia in the world, and जो rights etc. protect करे जाते हैं for all the communities in India, it is a result of it. फिर फर्दर हम बिल की भी बात करते हैं कि क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बिल लाना इट इज ओके. फॉर एग्जांपल सेवरल बिल्स वर इंट्रोड्यूस लाइक प्राइवेट मेंबर्स बिल्स रिगार्डिंग द population regulation bill 2019 and several other bills as well, specifically in Uttar Pradesh etc., ताकि हम कंट्रोल कर सके. But that is not a good criteria so as to contain the population. Rather, more focus, even in the national population policy of 2000 it was mentioned कि जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है कि मैरिज के टाइम पे एज क्या है, एज एट बर्थ, मतलब व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न तो मदर की क्या एज है, फिर गर्ल एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन सबको प्रेफर करना चाहिए ओवर द कोर्सिव मेथड जो कि हम बिल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. So that would further improve their condition, their literacy, and more benefit will be there regarding the actual जो growth होएगी of the children etc. regarding education and other aspects. So this article is also related to this कि the number of children has more to do with development than religion, कि कितना उनको education मिली है, whether they are aware of the contraceptive methods या नहीं, and also the family planning का जो concept आता है, all these things इनकी awareness बहुत ज़्यादा important है. Then there are these graphs shown here, data charts, जिसमें परसेंटेज शेयर ऑफ वुमेन एजेड 20-24 ईयर्स जो पहले मैरिड हो गए बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट, तो अगेंस्ट द मुस्लिम फर्टिलिटी रेट. तो इसमें एज यू कैन सी के जैसे बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज है who got like females who got married as children, and उन्हीं में ही fertility rate ज्यादा भी है, specifically हरियाणा एंड बिहार. देन सेकेंड चार्ट में अगेन मुस्लिम फर्टिलिटी रेट, तो इसमें फीमेल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है और रिगार्डिंग द लिटरेसी से रिलेशन है यहाँ पर. अगेन यहाँ पे बिहार एंड हरियाणा लिटरेसी रेट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लेस, बट बिहार एंड हरियाणा में ही द population or the fertility rate that is more among Muslims. And also this is So- regarding awareness. So इसमें also Muslims were less aware regarding the family planning etc. तो क्या करें उसके लिए एक लाइन बताइए औशिक जी. सर जो बिहेवियर चेंजेस है और नजिंग है फॉर बोथ द कम्युनिटीज, इट शुड बी वाया गवर्नमेंट मशीनरी. और कैसे हो सकता है? तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू अवेयरनेस, इसके थ्रू कर सकते हैं. स्कूलिंग एरियाज में भी हर एक स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के बाकी एरियाज में भी से, तो उसमें फोकस कर सकते हैं. इसमें even the फैमिली प्लानिंग इज ओनली सॉल्यूशन सर. इसमें even the intervention of आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स it can take place since वो health soldiers होते हैं, ज्यादा close भी होते हैं to the community, तो वो directly इसके regarding भी they can generate awareness among the various communities specifically. The next is regarding investment lessons from the India-EFTA trade deal. So EFTA is European Free Trade Association. तो इंडिया और EFTA के बीच में दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट वाज साइंड रिसेंटली. तो EFTA क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, दीज आर द 4 कंट्रीज जो EFTA के अंडर में आती है. एंड यूके, यूरोपियन यूनियन, बाकी यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इन सब के साथ ऑलरेडी इंडिया ने FTA साइन कर रखा है, FTA डील. लाइक यूएई के साथ सेपा साइन कर रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑल्सो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रेड अग्रीमेंट. ऑल दीज आर ऑलरेडी साइन. बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकली EFTA की बात हो रही है, इसमें ऐसा डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पर एक ऐसा प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करा गया है जिसमें द EFTA कंट्रीज दे शैल एम टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया. ये प्रेरणा 2 है बस, एग्जैक्टली 2 है. इसमें न्यू चीज़ है. पहला है कि आपको प्रॉमिस किया है कि FDI देना पड़ेगा $50 बिलियन विद इन 10 years, एंड सेकंड इज
जनरेशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया, 2 है। तो हम्म इसमें ये बात हो रहा है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शुड प्रमोट दिस काइंड ऑफ एफटीए। इसके लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज के अंदर में चेंज लाना चाहिए, और न्यू एफटीए पॉलिसी टॉक्स अबाउट बोथ द एफडीआई एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स बाय द एफडीए हम्म तो एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी। हाँ, कंटिन्यू। वन की टर्म कैन बी ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्ट, जो कि मतलब साइन कर रहे हैं ताकि ये लीगली मतलब ऑब्लाइज हो जाए कि करना ही है। एंड ऑल्सो एक जो फर्दर सजेशन दिया है इस आर्टिकल ने फॉर द FTA 3.0, कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसमें जो डिफरेंस है, जैसे ट्रेड इज मेनली फॉर द शॉर्ट टर्म, जो भी एक्सचेंज होता है स्टॉक्स एक्सेट्रा का, बाइंग एंड सेलिंग। इन्वेस्टमेंट इज रादर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसमें जो डिफरेंस इंडिया क्रिएट कर रहा है, लाइक वो सेपरेट अग्रीमेंट्स फॉर्म कर रहा है ट्रेड की भी और इन्वेस्टमेंट की भी। बट इसमें सजेशन में ये है कि they can have a comprehensive economic treaty जिसमें both can be mentioned, and India can argue that it needs more concessions in trade in return for offering something on investment or vice versa, like according to the need. So that was it. This article is regarding DigiLocker. तो DigiLocker is a platform जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और ये कैसे इनिशिएटिव काम करता है, कैसे काम करता है, बेसिक वर्किंग क्या होगा उसका? बेसिक वर्किंग इसमें ये है कि व्हेन द पर्सन लॉगिन्स, तो लाइक जो नंबर है वो लिंक होएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी अपडेट होंगे फर्दर डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे, जो उनकी सॉफ्ट कॉपी होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये इक्वली वैलिड होंगे टू द हार्ड कॉपी, या फिर जो एक्चुअल प्रिंट करके हम डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस है उनसे। तो वर्किंग होएगी एंड ज्यादा इजी एक्सेस होएगा, कहीं पर भी पेपर फ्री इनिशिएटिव है, एंड इजी अवेलेबिलिटी होएगी इनकी, फास्टर सर्विस डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सब मेजर बेनिफिट्स है। एंड एक हम्म सिक्योर पिन के साथ प्रोटेक्टेड होंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हम्म मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी हम्म वेरिफिकेशन, कंसेंट सिस्टम सब होगा। हम्म प्रॉब्लम क्या है इसमें कि लोगों के पास एक आइडिया नहीं है कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ पे स्टोर होता है डाउनलोडेड आइटम्स, मिसमैच होता है, यूनिफॉर्मिटी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हिसाब से रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो तो डिजी लॉकर है, एक बार डिजी यात्रा, दो हम्म अलग कौन, तो यात्रा हो गया, यात्रा मतलब कि आप, आपके पास सब ऑनलाइन रहेगा सिस्टम, फिंगरप्रिंट हर एक चीज़, आप बस जाओगे, जरूरत नहीं पड़ा लाइन में लगने का, डायरेक्टली आपका फेशियल और आईरिस स्कैन करके आपको अप्रूव किया हम्म जाएगा। ये हम्म यात्रा हो गया। इश्यूज में मेनली एक तो लिटरेसी का ही है कि जनरली पीपल आर नॉट अवेयर। फिर ये नॉन यूनिफॉर्मिटी का कि कई गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट कई सही नहीं करती, दे रिव्यू द ओनली द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। तो और ऑल्सो अगर कुछ भी मिसमैच होता है कि नेम में मतलब स्पेलिंग में या फिर कैपिटल एक्सेट्रा, तो वो भी फिर एक्सेस नहीं करता। तो ये कुछ चैलेंजेस है which can be overcome. So this worm develops food habits and its offsprings inherit them. तो यहाँ पे this is P. vranovisis, so it makes a small RNA molecule called small RNA. तो ये एक तरह का पैथोजन है, एंड जब वॉर्म इसको इंजेस्ट करता है तो वो इस पहली बात SRNA को भी ले लेता है। फ्रेंड्स में बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है ये, इसमें रिसर्चर्स फाउंड कॉल्ड राउंड वर्म सेनोर हैबिटिस एलिगन the worm because of its widespread use in research to understand neurological and molecular biology। ये फर्स्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट हो गया पीटी के लिए, हम्म जिसका फुल्ली जीनोम सीक्वेंस हो चुका है और और न्यूरल न्यूरल वायरिंग हैज बीन मैप। मैप्ड। हम्म ये नाम है वॉर्म का, इट कैन बी आस्क्ड। हम्म फर्स्ट है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म टू हैव फुल्ली जीनोम सीक्वेंसिंग उसका। हम्म अब आता है इसमें जो आप बोलना चाह रहे हो।
तो इसमें इट मेनली टॉक्स अबाउट कि कैसे जो हम इंजेस्ट करते हैं दैट डायरेक्ट्स कि जो हमारा एवोल्यूशन होता है या फिर जो चेंजेस आते हैं इन आवर बिहेवियर, तो उनमें मॉडिफिकेशन होता है। देन फर्दर जो आगे की प्रोजेनी होती है, जो चिल्ड्रन होते हैं इन द लेटर जनरेशंस, इवन देयर बिहेवियर गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि इसमें when this worm it first ingests these bacteria etc, तो उसके बाद it reduces its consumption, क्योंकि जो ये strains होते हैं दे इजेक्ट समथिंग इन द डीएनए जिससे कि जो डाइट कंट्रोल होता है दैट टेक्स प्लेस। तो मेनली यहाँ पे डीएनए आरएनए की बात हो रही है, द डिफरेंसेस दैट आर देयर। फिर जब डीएनए से एमआरएनए बनता है एंड देन लेटर प्रोटीन, तो इसमें वी कैन टॉक अबाउट दिस कि जैसे जो एक्सप्रेशन होता है जीन का, कि सपोज जो बाल है वो ब्राउन कलर के, तो वो दैट इज ड्यू टू प्रोटीन इटसेल्फ। तो देयर इज आल्सो दीज टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस कि जिससे डीएनए इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन। So we were talking about the conversion of DNA to protein for the gene expression, जिसको कि हम phenotype भी बोलते हैं, जिससे कि जो जीन्स होते हैं या फिर जो हमारे जीनोटाइप होता है वो विजिबल होता है बाहर एक्सटर्नली। तो इस प्रोसेस में दो मेन चीजें इंक्लूडेड होती है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज जब डीएनए से जब एमआरएनए फॉर्म होता है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। फिर फर्दर मैसेंजर आरएनए पे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एट द अदर एंड, एंड जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस सेकेंड प्रोसेस दैट इज फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये जो दो प्रोसेस होते हैं ये कंबाइन करके हमारा जीन का एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। एन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है, वेर एज जो एमआरएनए जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के बाहर आकर, यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहां पे टेक्स प्लेस। This article is regarding protecting children on the internet calls for frank conversations at home and in the classroom. So this article poses a different viewpoint so as to prevent these cyber attacks या फिर जो virtual touch, which can be the new term, among the children या फिर जो various offenses होते हैं online। तो इसमें it talks about the frank conversations या फिर the way the family members or even the teachers at the school या फिर even the friends, they generate such conversations जिससे कि the awareness it automatically increases and cyber space में जो risk etc है उनको prevent कर सके। तो important acts are protection of children from sexual offenses, POCSO Act, and digital personal data protection। Then a few days ago, we read an article regarding the governments that were formed in the 1980s, especially in the latter half decade. तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी, फिर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जी, इन सब का mainly they were ruling. And this article it mainly talks about the later process and some other important parties which we can just highlight the names here. इसमें इम्पोर्टेंट ये हो गया कि 1980s 81 82 83 84 में वहाँ पर पंजाब में इट वाज वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर पंजाब, क्योंकि वहाँ पर इंसर्जेंसी पीक पर था अंडर द विंटर वाले। तो आफ्टर द ब्लू स्टार ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद फिर दो जो बयान सिंह दो जो थे सिख बॉडीगार्ड थे, दे हैड किल्ड हर। उसके बाद फिर इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी टुक ओवर द रेंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उस समय कांग्रेस पार्टी 404 सीट जीते थे। फर्स्ट फेज लोकसभा 84 में, 31 अक्टूबर 1984 में डेथ हुआ था और 24 दिसंबर 1984 में वो बने थे 400 पर। फिर चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी सेकुलर स्प्लिंटर इनटू ओन जनता पार्टी जेडीएस और जनता पार्टी दो में, और लोक दल भी, ठीक है। जगजीवन राम कांग्रेस
इसमें दिस तो ऑल्सो स्प्लिट हुआ मेंशन्ड तो अबाउट उसमें लोकदल itself इसमें it is mentioned कि ये भी split हो गया था as the बिहार leader कर्पूरी ठाकुर जी he went his own way and later फिर भारत रत्ना भी रिसीव हुआ था दोनों को चौधरी चरण सिंह जी को भी एंड कर्पूरी ठाकुर जी को फिर राजीव बोनी ने अमेठी हम्म सबको जीता था, इलाहाबाद से वो जीते थे अमिताभ बच्चन। हम्म और अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट ऑब्वियस बात है, 400 प्लस। दूसरा एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यू फेज इन पॉलिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव लोंगवाल अकॉर्ड पंजाब में, असम अकॉर्ड हुआ 85 में असम में, असम मूवमेंट। और साबानो केस, फेमस केस, साहब ट्रिपल तलाक केस, पहला केस यही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहबानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, उनको पति ने तलाक दिया था, तलाक तलाक तलाक। तो वो गई थी कोर्ट में, तो कोर्ट बोला कि जायज़ है। जब फिर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ऐसे तलाक नहीं हो सकता। तो इट वॉज वेरी वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि इट इज अमाउंटिंग टू द वायलेटिंग ऑफ द शरियत प्रिंसिपल इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उसके बाद राजीव गांधी ने मैंडेट पास किया पार्लियामेंट में, रिवर्सिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन साहबानो केस। इसलिए साहबानो केस was a historic case which changed the landscape of India regarding the UCC। यूसीसी से भी बात करते हैं तो साहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बोफोर्स स्कैंडल, इसमें हुआ था कि बोफोर्स एक गन होता है, इसमें बोला गया कि देयर वाज सम काइंड ऑफ मिडिल मैन, तो इट ये हॉन्टेड स्वीडिश राजीव फाउंडेशन। कोई बाद में फिर स्वीडिश एक और हुआ इसमें 86 87 में, राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स को भेजा श्रीलंका में टू डील विद द एलटीटी प्रॉब्लम। तो एलटीटी लीडर्स और प्रभाकरन और उनके जो थे असैसिन थे, दे हैड किल राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट 1990 के आसपास। उसके बाद से थर्ड कोalition है, और उसके बाद से फिर वापस से बीजेपी, फिर कांग्रेस 2 टर्म, फिर बीजेपी 2 टर्म। So this article is mainly regarding this oleander flowers. तो prominent use होता है केरला temples में as offerings etc. And further जो health benefits है वो भी काफी ज्यादा है इसके, like in medicines etc. Also it is used, oil की तरह use करते हैं। Major यहाँ पे concern क्या है कि it is poisonous. And like there was a lady, she chewed a few leaves of this plant, oleander leaves she chewed, and after that, after some days, she died. तो it is toxic and ओलेंडर फ्लावर्स तो श्रब होता है सुसाइड के लिए यूज होता है इसको। How toxic is oleander? Toxicity of oleander has been long recognized in the culture around the world. Exploited therapeutic purposes and instrument of suicide. इसके अंदर में क्या होता है, कार्डियक ग्लाइसोसाइड होता है, स्टेरॉइड, दैट अफेक्ट्स द कार्डियक मसल, हार्ट। आयुर्वेदिक में भी यूज किया जाता है स्लाइटली स्किन डिजीज के लिए। वाइट फ्लड वैरायटी कहाँ पर है, श्रब, स्मॉल ट्री, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन में, ऑर्नामेंटल, लैंडस्केप पर्पसेस में, और ड्रॉट कन्ना व्यू। टॉलरेंस भी है। ड्रॉट ठीक। So make it farmer friendly. तो export policy has a consumer bias. तो again regulation is needed here, proper regulation, and also कंज्यूमर वाइज पहले arbitrary or कैसे, immediate क्या कंज्यूमर वाइज पहले कैसे, तो एग्जांपल अगर बोलेंगे तो वीट, जब इंडिया में वीट प्राइस कम होता है तो मोस्टली दे एक्सपोर्ट वीट। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू टॉप, टोमेटो, पोटैटो, अनियन। लेकिन जब प्राइस बढ़ जाता है तो हाँ, जब प्राइस बढ़ जाता है फॉर द कंज्यूमर, then government uses powers under the EC Act, Essential Commodity Act, and they curb the export of the raw onion to the countries। तो इसलिए कंज्यूमर बायस है यहाँ, बोलो यार, बोलो। तो यानी कि जो सप्लाई होएगा उसके अकॉर्डिंग दे डिसाइड के एक्सपोर्ट कितना करना है नहीं करना, मेजर
फिर इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। तो एक तो जो ग्लोबल प्राइसेस होते हैं ऑफ एग्री प्रोड्यूस वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जो हमारी इंटरनल एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो कितनी लिबरल है। तो इसी के अंडर में ये कंज्यूमर बायस वाला पॉइंट आ सकता है। सो ट्रेड थ्योरी सजेस्ट कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यूज की भी बात हो रही है कि सपोज इफ द कंट्री इज एक्सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट एट अ पर्टिकुलर कॉस्ट फॉर सम टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट क्या होता है कि द कंट्री हैज टू सप्लाई मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस। तो उसकी वजह से दिस दिस इज ड्यू टू द मार्जिनल रेवेन्यू कि एक लिमिट के बाद जो यूटिलिटी होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस वाज अ मेजर पॉइंट हियर। तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी सेट होनी चाहिए विच कंसिडर्स बोथ फार्मर्स आल्सो एज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द कंज्यूमर्स। दिस वाज मेनली रिगार्डिंग। और भैया इसमें एग्री एक्सपोर्ट लिखा ओवर द इयर्स एग्री एक्सपोर्ट कम हुआ है एक साल के अंदर में। और सबसे ज्यादा एग्री एक्सपोर्ट में क्या है? मरीन। हम्म 21% of the agri export following rice are marine, 15% फिर spices, फिर bovine. हम्म Rice hold the top India agri export basket. राइस का मरीन है, हम्म लेकिन हम लोग डेटा देखे तो मरीन था पहले। हम्म देसी ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसे। हम्म एक्सपोर्ट किसी और बैन लगता है तो वीट बात कर लिए, राइस हो गया, शुगर, अनियन। हम्म और नॉन बासमती राइस इज ब्रोकन राइस, हम्म जो लोकल राइस होते हैं। हम्म बस ये इंपॉर्टेंट है। सावन मजार शरीफ अफगानिस्तान में, जहाँ फ्लैश फ्लड आया था, हम्म फ्रॉम द मैप पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, border road vibrant village program, it is important for the border security. Vibrant village program नाम में है कि villages that are in the border region should be the first village of the country, model village where the people and the army can jointly patrol that region. उसी के लिए लोकल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और उनका लाइफस्टाइल और बढ़ सकता है, बेहतर हो सकता है। और लॉजिस्टिक प्लस जो भी बेसिक एम्यूनिटी एंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और आर्मी को कम से कम एक लोकल सिविलियन हेल्प मिल जाएगा। इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 2 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर ऑन द रोड्स। 168 विलेजेस अराउंड द बॉर्डर डू नॉट हैव एनी रोड कनेक्टिविटी। तो क्या होगा कि विलेजेस अगर रोड कनेक्टिविटी होगा तो लोग और अच्छे तरीके से कांटेक्ट में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आर्मी को भी, तो वो लॉजिस्टिक में आसानी होगी। इसमें एक कीवर्ड 60% villages will be the convent of first phase of are in अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश है मोस्टली 68%। उसके बाकी जगह में फोकस किया जा रहा है, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम। 4,800 crore rupees have been allocated for this. हम्म Vibrant village program is along the LAC, LOC में नहीं है ये, Vibrant village LAC। एंड मेजर इसमें स्टेट की भी बात कर सकते हैं कि कौन से इंक्लूडेड है, कि जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। अब LAC में हम्म इसलिए। हम्म नेक्स्ट, एंड ऑल्सो एक कीवर्ड, अफोर्डेबल। बोलो। इसमें कीवर्ड भी बोल सकते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, इसी के रिलेशन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हम्म अफोर्डेबल हाउसिंग, पोल प्रॉमिस में बोला गया कि सबको हाउसिंग मिलेगा, सबको रहने की जगह मिलेगा एट ए वेरी अफोर्डेबल रेट। ऑलरेडी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। इंडिया इज अराउंड 1.7% मिलियन होमलेस पीपल 2011 के हिसाब से, अभी हो सकता है ज़्यादा भी हो। एस्टिमेशन कितने, 18.78 मिलियन मोर हाउसेस were required to cater to the housing demand. तो अर्बन हाउस शॉर्टेज रोज बाय 54%। उसमें से अगर देखा जाए तो हाउसिंग वेकेंट भी है, शॉर्टेज 19 मिलियन है वे 11 मिलियन वेकेंट यूनिट।
Urban affordable housing was at merely 18% of the share. तो बोल सकते हैं कि इसमें अलग अलग एरियाज है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू हाउसिंग हैज बीन हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. 1985 में इंदिरा आवास योजना वो फोकस ऑन रूरल हाउसिंग. उसके बाद चेंज हुआ, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन आया, पारेख कमेटी, उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है. ठीक है, मतलब ये स्कीम का एवोल्यूशन 1985 से हुआ ओवर. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दो है. अर्बन वाले अर्बन मिनिस्ट्री होंगे और रूरल वाले रूरल मिनिस्ट्री होंगे. PMAY और यू अर्बन 1.18 करोड़ फैमिलीज बाय दिसंबर 2024. 67% टारगेट पूरा हुआ. 80 लाख. 3 टाइप से होता है. क्रेडिट लिंक सब्सिडी है कि आप सब्सिडी मिलेगा, आप बनाओ. दूसरे कि आपको बना के दिया जाएगा. रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, वो तीसरा होगा स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम. रुक जाओ. हाँ, व्हाट अबाउट द स्टेट स्कीम. तो अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, स्टेट स्कीम के पास अपने अपने आंध्र प्रदेश का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है अलग अलग. तो सबसे ज़्यादा इसमें आता है इशू फंडिंग में, फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में. इसको पूरा कर सकते हैं कब, जब प्राइवेट बॉडीज का रोल आएगा या फिर आप लोकल बॉडीज को भी ओपन करें बॉन्ड क्रिएट करके, तब हो सकता है. नेक्स्ट, इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर पहले यूएस था 1-2 साल पहले, फिर चाइना वापस आ गया. $100 बिलियन इम्पोर्ट बढ़ चुका है, इम्पोर्ट हो चुका है चाइना से. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इंडिया का है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव बायलैटरल ट्रेड $118 बिलियन. इंडिया यूएस का 118.3 है. डिस्पाइट बैन ऑन सेवरल एरियाज, वहां पर उसको रेगुलेट भी किया था, टेलीकम्युनिकेशन, स्मार्टफोन, फार्मा, तब भी डिपेंडेंसी बढ़ा है इंस्पाइट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज. क्यों ऐसा? पहली बात है कि जो राइजिंग मिडिल क्लास है, दे आर गोइंग फॉर मोर अफोर्डेबल चीपर ऑल्टरनेटिव देन वेस्टर्न सेंट्रिक. मोबाइल में भी Xiaomi से लेकर के बाकी जब एरियाज है, और इवन बड़े बड़े ब्रांड भी मोबाइल जो बनाते हैं चाइना मेड है, मेड इन चाइना है. तो उस एक फैक्टर है. दूसरा कि आपको अगर सही कॉस्ट पे मिल रहा है और लॉन्ग टर्म चल रहा है तो क्यों नहीं खरीदा जाए फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, उसी कारण. तो रादर देन यूजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी और अदर काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर मैकेनिज्म, इसका रोल होना चाहिए कैसे इसको ऑल्टरनेटिव बनाए इंडिया को, मेक इन इंडिया कैसे प्रमोट करे. और अगर चाइनीज फैक्ट्री अगर इंडिया में स्टैब्लिश भी हो रहा है और मेक इन इंडिया में वो मोबाइल फोन बना ही रहे हैं, उसमें फिर दिक्कत क्या? वैसे भी तो सही है फिर. इसी बोल सकते हैं. तो थर्ड में यूएई आता है. तो फर्स्ट चाइना, यूएस, यूएई. ठीक है, एंड कर दो. Thank you everyone for joining. We'll continue in the next newspaper session with next set of articles. Thank you.